Okay, very good afternoon to all of you, beta. We have started with ionic equilibrium. We have studied about different theories of acid. We have studied dissociation, constant of weak acid, weak base. Riyansh, Ali, यहाँ पे देखो बस. Then we have studied about Ostwald's law of dilution. Then we studied about ionic product of water Kw. H plus into OH minus is equal to Kw, that is 10 raised to minus 14. Then we studied about pH and POH. pH plus POH is how much, beta? 14. Right? And then, beta, in last class, we studied about hydrolysis of salt. Hydrolysis of salt we studied. And then we studied about buffers. Okay? Acidic buffer, basic buffer, buffer mechanism, common ion effect. Okay? Properties of buffer, uses of buffer. Okay? And one thing is now remaining, that is numerical based on buffers. How will you come to know that the numericals buffers का numerical है वो कैसे पता चलेगा? Earlier beta in your old syllabus used to have definition for buffer. Okay, what is the formula? This equation was given by whom? Henderson and Hasselbalch equation. Okay, Henderson and Hasselbalch. Okay, what is the formula for this? pH is equal to, acha, when you will use this beta, if they are given what, beta? Acidic buffer. And when you will use this beta, if they are given what? Basic buffer. What is the formula? pH is equal to what? pKa plus log to the base 10 of concentration of salt upon acid. This is for acidic buffer given here. For basic buffer, what you will get, beta? POH is equal to pKb plus log to the base 10 of salt upon base. This is the concentration of salt upon base. This thing will be given in the numerical. This Kb will be given, we can find pKb. Now beta, I have given you the trick. How to find first pH? बताओ मुझे. We have done beta pH. What is the formula for pH? Minus log to the base 10 of H plus. POH is what, beta? Minus log to the base 10 of OH ions. But I have given you shortcut, beta. If your H plus ion is, listen, beta, 10 raised to minus A, then pH will be what? A. pH will be what? Suppose, beta, if I give you this is 10 raised to minus 7, then this will be how much, beta? 7. If this is 10 raised to minus 8, then this will be how much, beta? 8. No need to use this formula. I can go ulta also. If pH is A, then what will be your H plus? I can go reverse also or not, tell me. Look, if H plus is this, then pH is this much. But if your pH is A, then H plus will be... but provided this number should be whole number. याद आ रहा है कि नहीं? ये मैंने ट्रिक दिया था. फ्रैक्शन में होगा तो नहीं होगा. I'll tell you that also. Similarly, beta, if my OH minus is how much, beta? OH minus is 10 raised to minus x. Then your POH will be how much? 10 raised to, sorry, POH will be how much, beta? X. तो बेटा अगर ये 10 raised to minus 12 है तो ये कितना होगा? 12. Provided all this should be whole. Clear hai? Okay, then what we have studied, pH plus POH is how much? 40. अच्छा बेटा, pH के लिए क्या फॉर्मूला लिखते थे? माइनस log to the base 10 of Ka. So similarly beta, if I have pKa, what will be the formula? pK will be what? Minus log to the base 10 of Ka. What will be pKb? pKb will be also what, beta? Minus log to the base 10 of Kb. Ka is dissociation constant of weak acid. Kb is dissociation constant of weak base. Now we have to do numerical based on what? Henderson-Hasselbalch equation. Okay. Now in this beta exam mein, how will you come to know that we have to use this? So in our exam, they will mention beta. What they will mention? Look, beta, in your textbook, beta, we are on page number 56. We did buffer, we did application, and we did this two equation. Can you see? pH is equal to what? pKa plus log to the base 10 of salt upon acid. Okay, where pK is minus log to the base 10 of Ka. Clear? Okay, right? आ रहा है ना बेटा? A, what is your pKb? Okay.
if I say basic buffer, then POH is equal to PKB plus log to the base 10 of salt upon base. And what is your PKB beta? Minus log to the base 10 of PKB. Clear है? अच्छा, how will you come to know that the numerical is based on buffer? तो बेटा अभी हम लोग एक सम पढ़ेंगे बेटा. चलो आ जाते बेटा. We'll read this sum. चलो. अरे यार कलर. आ जा बेटा. यहाँ पे क्या दिया है? कैलकुलेट पीएच. मानस बेटा व्हाट इज रिटन? यहाँ पे बफर वर्ड आया है कि नहीं बोल. ये बफर वर्ड दिख रहा है तेरे को? मतलब अगर बफर वर्ड होगा हीत बेटा, इफ द बफर वर्ड इज देयर. बंद कर देना बेटा. बफर वर्ड इज देयर. हेलो. तो बैठ जाना यहाँ पे. पेपर ले लेना अपना. दिया है टेस्ट को. ये सब लोग ने पेपर. मानस पेपर लिया क्या तूने तेरा? बैग में अच्छे तो है। ये जो भी अभी आए पेपर ले लेना अपना. ठीक है ना? ले लिया। अच्छा. हीत बेटा पीएच बफर वर्ड इज रिटन हियर और नॉट? टेल मी. हेलो. ओके. वॉलेट भूल गया वो शायद वहां पे. अच्छा. बफर वर्ड इज देयर. ए सोल्यूशन कंटेनिंग व्हाट बेटा? 0.05 ऑफ NaF. NaF क्या होता है आशिका बेटा? NaF क्या है? सॉल्ट है. सॉल्ट है ना? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज गिवन. हाउ मच इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट गिवन? 0.05. ठीक है, मोल पर लीटर. आर यू गेटिंग इट? ठीक है. ध्रुवीन बेटा 0.015 ऑफ HF. HF क्या है? एसिड है या बेस है? HF. हाँ क्या है? हाँ तो ऐसा बोलना ये रे. हाँ. आवाज नहीं आया दे रहा है तो मन में बोल रहा था क्या? 0.015 मोल पर लीटर. बराबर है. ओके. ये दर्श ना? आदेश नहीं. आदेश. आदेश तो ये आदेश है. वो पीछे लास्ट. क्या नाम है तेरा बेटा? दर्श. हाँ, ओके. वेंकी. वेंकी. और क्या वेंकी? और क्या दिया यहाँ पर? KA दिया है कि नहीं बोलो? अच्छा. अभी व्हाट वी आर दे हैव टोल्ड अस टू कैलकुलेट पीएच. पीएच का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पीएच बेटा? जस्ट नाउ वी डिड. इट इज अ बफर वर्ड इज देयर. सो बफर वर्ड रहेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? PKA प्लस log to the base 10 of salt upon. एंड चलो अभी बेटा सबसे पहले अपने को PKA ढूंढने का है कि नहीं? KA कितना दिया है? हाँ 7. अच्छा आपको पता है या बेटा मैंने आपको एक ट्रिक दिया था. अगर तुम लोग को कभी भी ऐसा दिया रहता है कॉन्सेंट्रेशन A इंटू 10⁻⁻⁵ राइट ना? तो उसका अगर मतलब कोई भी चीज दिया है तुम्हारा, ये किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन दिया है X का KA का, तो व्हाट विल बी योर PKB? A इंटू 10⁻⁻, देन इट इज व्हाट? B माइनस लॉग A. B माइनस. तो चलो बेटा अभी इसका क्या करोगे? ए देयरफॉर व्हाट विल बी PKA? वी हैव टू फाइंड PKA और नॉट. अरे लिखते समय हम लोग ऐसा ही नाटक करेंगे बेटा. इट इज माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ KA. आर यू गेटिंग इट और नॉट? इट इज माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ. अच्छा. इसका वैल्यू कितना दिया है? माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ. ये क्या दिया है बोलो बेटा? KA का वैल्यू कितना दिया है? 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴. तो इसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 4 माइनस लॉग ऑफ 7.2. ठीक है. तो चलो बेटा 7.2 का लॉग कितना होगा बोलो? अरे देखना लॉग टेबल कभी लाया कि नहीं? ये इसका लॉग का वैल्यू 7.2 का. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक? 0. समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर अरे यार कलर कहाँ पे? 4 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 0 पॉइंट लॉग ऑफ पॉइंट. 7 पॉइंट का बेटा अप्रोक्सीमेटली तुमको आएगा बेटा 0.5 आएगा. देखो कितना रहा है? नहीं नहीं कितना रहा है? हाँ सॉरी 4.8 होता था उसका. बराबर है 8.5. हाँ चलो 8.573. इसमें से माइनस करेगी तो क्या आंसर आएगा बोल? अरे आंसर क्या? 3 पॉइंट.
3.2 नहीं, 8.5 है ना बेटा, तो 3.15 ऐसा आएगा, 1527, बराबर है कि नहीं? ओके, चलो पीके मिल गया। फिर लॉग टू द सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? जीरो, अरे 0.05, बराबर है कि नहीं? और एसिड का कितना है? 3 हाँ जो भी रहेगा बेटा, 3.14 जो भी आया था, ठीक है ना? उसने जो बोला वो मैंने लिखा, ठीक है ना? 3.14, ठीक है। ये 0.05 अपॉन दिस, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो बेटा? ये 5 और ये 15 ऐसा मैं कर दूंगा तो ये इंटू 10 हो जाएगा कि नहीं? तो 1/3, सो 10/3, तो 10/3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो बेटा? लॉग ऑफ 10/3 इज लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 3। लॉग ऑफ 1 इज हाउ मच? लॉग ऑफ 10 इज हाउ मच बेटा? 1। 1 माइनस लॉग 3, लॉग 3 कितना होता था बोलो बेटा? 0.48, याद आ रहा है ना? 0.48 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। वो डॉ सब्सटीट्यूट करना तो आंसर आ जाएगा। अरे इजी और नॉट, टेल मी। तो ये देख बेटा, हाँ 3.14 को हाँ 1.5 कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना? ये देख आया कि नहीं? पहला बोल बेटा। अरे बेटा ये देख ना, a इंटू 10⁻⁻b होगा तो क्या हो जाएगा? b माइनस लॉग a, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर वो बोल रहा है पाई करो। अरे ये इसको बेटा ये ऐसा 3.33 नहीं करने का, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लॉग ऑफ 10/3, तो बहुत इजी हो जाएगा कि नहीं? लॉग 10 माइनस log 3। लॉग 10 इज हाउ मच बेटा? 1। log 3 कितना होता है? 0.48 अप्रोक्सीमेटली, याद रहा है कि नहीं? सो विल गेट दैट आंसर, देन विल सब्स्टिट्यूट हियर एंड विल गेट द आंसर, इजी। ये पीएच मिल गया, क्या मिल गया? इफ एसिडिक बफर वाज गिवन, नाउ हेलो, बेसिक बफर होगा तो क्या करेंगे? ओके, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, चलो आजा। कोणार्क पर यहाँ पे क्या लिखा है? पहले ये बफर वर्ड आया कि नहीं अंदर? बोल। बफर मतलब अपने को बफर करना है, और बफर का भी अपने को क्या बोला है ढूंढने के लिए? पीएच। लेकिन हमको दिया क्या है? बेस दिया है। क्या दिया है? ओ माय गॉड, तो मतलब बेसिक बफर दिया अली बेटा, बेसिक बफर दिया है। बेसिक बफर, तो बेसिक बफर के लिए मेरे को पीएच नहीं मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? पीओएच इज इक्वल टू, यहाँ पे पीके बी आ जाएगा, प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ, बोलो, सॉल्ट अपॉन क्या आएगा? बेस। अच्छा केबी दिया है कि नहीं बोलो बेटा? केबी दिया है कि नहीं? अबे कुनार बेटा, केबी दिया है ना? हाँ तो केबी से तू क्या ढूंढ सकता है बोलो बेटा? अपना फॉर्मूला क्या है? पी के बी इज इक्वल टू वॉट बेटा? माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के बी। अच्छा मैंने तुमको क्या बोला था? कभी भी ऐसा रहेगा ना, माइनस लॉग टू द बेस 10 रहता है और 1 a इंटू 10 रेज टू बी होता है, 10 रेज टू माइनस बी, तो आंसर क्या हो जाता है बोलो? 5 माइनस लॉग ऑफ 1.8। क्लियर है? तो ये अपने को आंसर आ जाएगा। तो मुझे ये मिल जाएगा कि नहीं? अभी कैलकुलेशन में आप पे छोड़ रहा हूँ, हेलो। ओके, फिर सॉल्ट का दिया है कि नहीं? अरे सुन बेटा, ये क्या दिया है? 0.2 मोलार ऑफ वॉट, तो मतलब सॉल्ट का वैल्यू तुझे कितना मिलेगा? ये तेरे को अपने को यहाँ से आ जाएगा, राइट? सॉल्ट की जगह पे तू क्या डालेगा बोलो? 0.2। अच्छा ये 0.1 मोलार ऑफ वीक बेस दिया है कि नहीं बोलो बेटा? तो यहाँ पे क्या डालेगा तू? क्लियर है? आंसर आ जाएगा कि नहीं बोलो? लेकिन अपने को क्या मिलेगा? वो पीओएच मिलेगा। क्या मिलेगा? बोला क्या है ढूंढने के लिए श्रुति बेटा? पीएच। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे? पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू हाउ मच? Therefore, pH is equal to how much? 14 minus pOH. All these are very straightforward numerical. बहुत easy है। ये देखो बेटा, देखो पहले देखिए डायरेक्ट आया कि नहीं बेटा? ये -5 था तो देख 5 माइनस लॉग 1.8 आया कि नहीं? वी गॉट दिस आंसर्स। अच्छा बेटा यहाँ पे भी ये लोग ने क्या एरर कर दिया है? या तो मेरे बुक में एरर है, तुम्हारे में कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया टेक्स्ट बुक में? देखो बेटा ऊपर 0.2 दिया ना? हाँ तो फिर यहाँ पे उन्होंने देख 0.02 डाल दिया, रॉन्ग किया है बेटा, समवेयर समथिंग इज रॉन्ग। हेलो, व्हाट इज रॉन्ग? आई टेल यू बेटा। अरे बेटा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया था? 0.2 दिया था ना?
तो ये आंसर भी कितना होना चाहिए था बोलो बेटा? 0। ये देखिए यहाँ पे सॉल्ट का वो लोगों ने रॉन्ग दे दिया है, प्लीज मेक दैट करेक्शन। आइदर यहाँ पे रॉन्ग होगा, दोनों में से एक रॉन्ग होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बेबी, either this will be wrong, otherwise either this should have been 0.02 or this should have been 0.02, or if you are taking this as 0.2 then this should be what? 0.2. That is wrong they have done. Clear है? हाँ, you know, अच्छा, you can change the question, you take this as 0.02, बेस्ट। ऐसा कर दे, एक काम कर दे, क्योंकि वहां पे वो कैलकुलेशन में फिर वो 0.02 लेके गया है ना, क्वेश्चन में ही चेंज कर दे, 0.02 कर दो, चलेगा। अभी बेटा अपने को लेकिन इससे आंसर क्या मिलेगा? पीओएच मिलेगा। पीओएच मिलने के बाद अपने को ढूंढने का क्या था? पीएच। क्या ढूंढने का था? अली, रेयांश, बात नहीं। बुक कहां पर है तुम्हारा? टेक्स्ट बुक वेक्स्ट बुक नहीं लेके आ सकते क्या तुम लोग? और ये पेपर खा के क्या कर रहे हो यहाँ पर? टेक्स्ट बुक किधर है? वो सब करेक्शन कौन करेगा? तेरा टेक्स्ट बुक किधर है? स्टूडेंट बेटा, विदाउट टेक्स्ट बुक आना है का नहीं? है पहले बता देता, टेक्स्ट बुक लेके आना है सबको, पूरा इसमें से आएगा बोर्ड में। कितना इजी सम है मेरे को बताओ, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और कुछ नहीं है। ओके, चलो बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तो ये बफर वाले कोई सारे सम कर पाओगे? दो ही सम हम लोग ने यहाँ पे दिया है, कर लोगे ना बेटा? टेक्स्ट बुक में दोनों मैंने सॉल्व करके बता दिए पूरा कैसे करने का, ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, solubility, solubility, ओके। नाउ व्हाट इज solubility इन जनरल मैं बोलूंगा, सपोज बेटा मैंने आई टेकन 100 ml ऑफ 100 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 100 ग्राम ऑफ वाटर आई टेकन, तो इसके अंदर मैं मैक्सिमम कितना सल्यूट डाल सकता हूँ? मैक्सिमम सल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अरे बेटा सपोज एक गिलास पानी हम लोग ने लिया, उसमें मैं मैक्सिमम कितना सल्यूट डाल सकता हूँ? तो वो उसका क्या हो जाएगा बोलो? सॉल्युबिलिटी। क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी किधर गया भाई? सॉल्युबिलिटी, ओके, राइट। Now, what is solubility product that I'm going to do? Now, here, beta, we are going to use sparingly soluble salt. What do you mean by sparingly soluble salt? Sparingly soluble means what, beta? They are practically insoluble. मतलब सपोज बेटा मैंने ना 1 ग्राम ऑफ AgCl लिया, 1 ग्राम ऑफ, एंड आई एम एडिंग इट टू वाटर, आई एम एडिंग इट टू, तो उसमें से कितना डिजोल्व होगा पता है क्या? 0.0000001 ग्राम, इतना ही डिजोल्व होगा। मतलब प्रैक्टिकल इट इज व्हाट? इनसोल्यूबल। प्रैक्टिकल इट इज, लेकिन बेटा कोई भी इनसोल्यूबल सॉल्ट भी हम लोग जब पानी में डालते हैं ना, तो उसमें से बहुत 0.000 इतना डिजोल्व हो जाता है। तो सोल्यूशन के अंदर व्हाट ऑल थिंग यू विल हैव, टेल मी। इन माय कंटेनर, दिस इज सपोज दिस इज माय कंटेनर, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे मैं बता रहा हूँ। तो इसके अंदर बेटा क्या होगा बोलो बेटा? सपोज ये मैंने क्या लिया था? AgCl। तो AgCl पहला सोल्यूबल हो रहा था क्या बेटा? नहीं ना। अरे नहीं हो रहा था ना, तो AgCl इज विल बी इन विच स्टेट? सॉलिड स्टेट। व्हाट इट विल बी इन विच स्टेट? लेकिन फिर भी उसमें से कितना डिजोल्व हुआ था? 0.00000। तो मतलब यहाँ पे भी क्या होगा? देयर विल बी इक्विलिब्रियम बिटवीन व्हाट, ये तो AgCl तेरा सॉलिड फॉर्म में, और ये जो Ag प्लस और Cl माइनस बनेगा, बट दिस विल बी वेरी 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 एकदम। तो अभी ये इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा? अच्छा, इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या रहेगा बोलो बेटा? वेन एवर वी राइट इक्विलिब्रियम, तो हम लोग क्या करते हैं? के प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है बोलो ना? Ag प्लस, एक ही था बेटा, Cl माइनस। तो इसके आगे जो भी नंबर रहता है वो हम लोग उसका पावर करते हैं। सपोज इसके आगे अगर x होता, आर यू गेटिंग इट और नॉट? यहाँ पे y होता, तो मैं क्या कर देता? रेस टू x रेस टू y का। ओके, बैलेंस यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे सॉल्व में बैलेंसिंग आ सकता है। और अपॉन व्हाट बेटा? AgCl। अच्छा, ये AgCl को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, तो k को व्हेन आई मल्टीप्लाई बाय AgCl, तो उसको हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? SP। SP मीन्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी। और क्या ये k इंटू AgCl का क्या हो जाता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सो व्हाट यू विल गेट? Ag प्लस एंड Cl माइनस।
इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? ऑफ अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द आयंस, ओके, रेज टू देयर स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है ना? सो हियर देयर इज एन इक्विलिब्रियम। बेटा देखना बेटा, यहाँ पे मैंने एजी सिया, इसमें इनसोल्यूबल सॉल्ट ही रहता है, याद रखना। देखना बेटा, AgCl is put into water, very small amount of AgCl will dissolve, 0.0000. Okay, most of the salt will remain undissolved. So there, the solid AgCl will be in contact with what? Ag plus and Cl. There will be equilibrium between solid AgCl and what? Ag plus and Cl. This equilibrium constant is called as what? Solubility equilibrium. अब ये सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रियम पे देख, मैंने इक्वेशन बनाया कि नहीं है बेबी? यहाँ जो AgCl सॉलिड है और ये क्या है? एक्वेस। एक्वेस क्यों सॉलिड था वो समझा ना? अब मैंने ये देख अप्लाई किया, तो अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसको इसको हम लोग ने क्या बोला? AgCl और ये K मिलके क्या बन जाएगा बेटा? KSP। क्या बन जाएगा? देख रहा है बेटा? KSP। देख हुआ कि नहीं है KSP? वहां व्हाट डू वी कॉल दिस एज KSP ए बेबी? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, KSP। क्लियर? अच्छा, दिस इज फॉर नॉर्मल सॉल्ट, बट बेटा इफ एनी सॉल्ट इज देयर एंड इफ इट हैज एनी वैलेंसी, इफ इट हैज एनी, अरे ये देखना BX, तो ये मेरे को बताया B कितनी टाइम है? X टाइम है कि नहीं? A कितना टाइम है? Y टाइम है कि नहीं? तो बेटा व्हाट विल हैपन बेटा, जो भी कॉन्सेंट्रेशन B के आगे क्या था? X, तो रेज टू द पावर A के आगे क्या था बोलो बेटा? Y। चलो बेटा मैं एक एग्जांपल दे देता हूं इनसॉल्युबल सॉल्ट का। क्या लेके बोलो बेटा? इनसॉल्युबल, आपको पता है ना पंजाब का बाग का अच्छा लेड क्लोराइड में लेता लेड। हाँ मैं बताता, लेड क्लोराइड इज इनसॉल्युबल और नॉट? टेल मी। तो अगर इसका इक्विलिब्रियम बनेगा तो इसका आगे क्लोरीन कितना आएगा? 2। सो व्हाट विल बी माय KSP? KSP कितना होगा? Pb2 प्लस। Pb2 प्लस के आगे कोई नंबर है क्या? इल है। अच्छा Cl माइनस के आगे कोई नंबर है? तो रेस टू 2। क्लियर है? दिस विल बी द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, चलो बेटा एग्जाम में आएगा पेज नंबर 58 पे। बेटा ये नोट्स में मैंने खाली ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला ही दिया आपको हैंड रिटन नोट्स में, बट ये आपको आना चाहिए बेटा, ये पूरा डेफिनेशन। इन सैचुरेटेड सोल्यूशन देख, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, ये वर्ड आना चाहिए। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयन रेज टू द पावर इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट, मतलब क्या? जो बैलेंस करने के लिए जो नंबर यूज किया इज कॉल्ड एज व्हाट? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एट अ गिवन टेम्परेचर। व्हाई गिवन टेम्परेचर? इफ यू चेंज द टेम्परेचर solubility will also change. Solubility will also change. ओके, अभी देख बेटा यहाँ पे सब एग्जांपल दे दिए भर भर के। आप मेरे को बताओ चलो। ए बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल। ए नैया, यहाँ पे देख बेरियम और सल्फेट आया, इसके आगे कोई नंबर है क्या? इसके आगे कोई नंबर है क्या? तो KSP क्या होगा? डायरेक्ट देख बेरियम रेज टू 1 एंड सल्फेट रेज टू 1। ठीक है? दिव्या बेटा कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम के आगे कोई नंबर है क्या? नहीं 1। फ्लोरीन के आगे कोई नंबर है तो रेज टू 2। समझा? So whatever number is there, that will write the power. Bismuth sulfide. ओके, क्या नाम है बेटा? शनाया ना बेटा? ओके, बिस्मथ के आगे क्या है बोल बेबी? 2। सल्फाइड के आगे क्या है? क्लियर है? रेयांश आंसर बता। कैल्शियम फॉस्फेट में कैल्शियम के आगे क्या नंबर है? हाँ, तो कैल्शियम रेज टू 3। फॉस्फेट के आगे क्या नंबर था? तो रेज टू। नाउ बेटा दे विल आस्क यू व्हाट इज मोलार सॉल्युबिलिटी। ओके, मोलार सॉल्युबिलिटी में हम लोग सिंपल सा वर्ड यूज करेंगे, क्या आएगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपाउंड दैट डिसॉल्व टू गिव यू 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलार। 1 लीटर ऑफ सैचुरेट, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो मोलार सॉल्युबिलिटी कैसे ढूंढेंगे बेटा? सॉल्युबिलिटी डिवाइड बाय मोलार मास। एग्जाम में बहुत बार तुमको ऐसा भी पूछेगा, फाइंड सॉल्युबिलिटी इन ग्राम्स। तो आप क्या करोगे बेटा? वट एवर आंसर विल गेट बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुमको। किससे? मोलार मास से। चलो बेटा अभी है ना एग्जाम में ये पूछेंगे बेटा, लुक हियर, हाउ in beta in this beta they will directly ask two definition. First is solubility and another solubility product, and second is what? Molar solubility. Then beta direct numericals will come. Direct
और न्यूमेरिकल्स कैसे करने का वो मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ, पहला सुन लो। सॉल्युबिलिटी, दे विल आस्क यू रिलेशन बिटवीन केएसपी। केएसपी मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एस क्या है? सॉल्युबिलिटी। एस इज, देख बेटा, अभी मैंने तुमको ना एक सिंपल सा सॉल्ट दिया है बेटा, ये देख रहा है? ओके, पी ए, तो मैंने आपको ये सॉल्ट दिया है। ओके, पी एक्स और तुम्हारा क्या था? ए वाई, ऐसा तुमको सॉल्ट दिया, तो ये डिसोसिएट होके क्या देगा बोलो बेटा? बी देगा, और क्या देगा बोलो? बी का वैलेंसी कितना था? बी वाई प्लस, और ये कितना देगा? एक्स माइनस। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, बी कितना टाइम्स है? एक्स टाइम्स। ए कितना टाइम है? अच्छा, इमेजिन करते इसका सॉल्युबिलिटी कितना था? एस था। सॉल्युबिलिटी कितना है? एस, मतलब बी कितना डिजोल्व हुआ? बी कितना डिजोल्व हुआ? एस कितना डिजोल्व हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? एक्स। सॉल्युबिलिटी इसका कितना है? एस है। ए का भी कितना है बोलो? एस। राइट। ओके, तो अभी इसका केएसपी का फॉर्मूला क्या था बोलो? अरे बी का वैल्यू कितना है तुम्हारा बोलो बेटा, ये आया कि नहीं? एक्स एस। इसका भी कितना आया? वाई एस। अच्छा, बी का फॉर्मूला क्या आएगा बोलो बेटा? बी प्लस रेस टू एक्स। अरे इसके आगे नंबर एक्स है कि नहीं? ए माइनस, जो भी रहेगा वो, ए माइनस वाई जो भी रहेगा, रेस टू व्हाट? वाई। तो चलो, देख यहाँ पे मैंने डाला कि नहीं, देख रहा है? एक्स एस रेस टू एक्स एंड वाई एक्स। अभी इसमें क्या हो जाएगा? ओपन दिस ब्रैकेट, व्हाट विल गेट? एस रेस, अरे बोलो ना भाई, एक्स रेस टू एक्स, वाई रेस टू वाई। यहाँ पे क्या आएगा? एस रेस टू एक्स एंड एस रेस टू वाई, तो एस रेस टू एक्स प्लस। अभी मैं तुमको ना एकदम शॉर्टकट बताता, इतना सब है ना मगजमारी मत करो, मैं तुमको एक बेसिक चीज बताता इधर आ। आपको एग्जाम में दो चीज पूछेंगे, क्या पूछेंगे? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, लुक हियर, यहाँ पे मैंने सॉल्ट दे दिया, टाइप सॉल्ट का टाइप क्या है? बी, क्या था? बी एक्स था और ए वाई था ना बेटा? ओके, केएसपी और सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन है? केएसपी इज इक्वल टू व्हाट? एक्स रेस टू एक्स। अरे यार, ये क्यों कैसा आ रहा है गंदा? एक्स रेस टू एक्स इंटू वाई रेस टू वाई इंटू एस रेस टू। इतना समझ में आता है तुमको? अब मैं तुमको पहला एग्जांपल देता, चलो पहला सॉल्ट लेते हैं एग्जांपल। एंड फर्स्ट एग्जांपल, एक्स भी वन है और वाई भी वन है, दोनों वन वन है। वन वन वाला कौन सा इनसॉल्युबल सॉल्ट था बोलो? एग्जांपल मैंने क्या ले लिया? ए जी सी है। अब मैं क्या बोलूंगा? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन के एस पी? वी हैव टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन होम? के एस पी एंड एस। चलो आ जाओ, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, क्या मिलेगा? एक्स का वैल्यू कितना है बोलो यहाँ पर? टिलोड़ा, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है? वन है कि नहीं बोल? देखा गया, वन रेस टू वन। वाई का वैल्यू कितना है बोल? वन रेस टू वन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस वन प्लस वन, तो क्या मिलेगा? हाँ, तो वन 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 हो जाएगा, तो वन रे टू हो जाएगा, तो के एस पी इज इक्वल टू वॉट? एस स्क्वायर। देयरफॉर एस इज वॉट? स्क्वायर रूट ऑफ। बस, एग्जाम में आपको ऐसा सॉल्व देगी और बोलेगी ये रिलेशन ढूंढो, ढूंढ पाओगे? बोलो। चलो अभी ये दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। सॉल्ट का टाइप क्या हो सकता था? बी टू ए और बी ए टू, दोनों सेम ही हुआ बेटा। और व्हाट बेटा? बी ए टू, कोई भी होगा तो सेम ही होगा, दोनों में से एक ट्राइवेलेंट होगा। केएसपी का फॉर्मूला क्या बोल रही है? एक्स रेस टू एक्स, वाई रेस टू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अच्छा, इसमें से बेटा अगर तूने पहला वाला लेगा तो एक्स का वैल्यू तेरे को कितना आएगा? टू। वाई का वैल्यू कितना है? वन। अभी एग्जाम्पल में दिया ना, अभी हम लोग ने किया था कैल्शियम फ्लोराइड। अरे बोलो ना। तो यहाँ पे क्या डालेगी बोल बेटा? अभी तुमको जो भी लेना है ले लो, ये कैल्शियम फ्लोराइड वाला लेगी तो भी यही आएगा बेटा, तो उसमें वाई का वैल्यू आएगा। सपोज अगर आपने बी टू ए लिया है तो क्या आएगा बोलो? नहीं, एक्स, हाँ, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना लिया है? टू। टू रेस टू टू, और वाई का वैल्यू कितना है? वन। और क्या हो जाएगा? वन, अरे टू प्लस वन, तो क्या हो जाएगा? फोर एस क्यूब। तो अब देयरफॉर बेटा अगर एस निकालने का रहेगा तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? क्यूब रूट ऑफ के एस पी अपॉन फोर आएगा कि नहीं बोलो? क्यूब रूट में ऐसा लिखेंगे। समझ में आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं मैन? चलो बेटा, अभी आपको एग्जाम में ऐसा सॉल्ट देंगे और आपको करना पड़ेगा। आपको मैंने अगर कैल्शियम फ्लोराइड दिया तो आपका आंसर यही आएगा, के एस पी इज इक्वल टू दिस। क्लियर? और एस पूछा तो क्यूब रूट करना पड़ेगा। देन कौन सा सॉल्ट लेंगे? ए इधर देखे, बी ए
3, BA3 में मैंने ले लिया। चलो बेटा कोई भी एक सॉल्ट ले लो, 3 वाला ऐसा ही ले लिया। चलो एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या करेगा बोल भाई, KSP इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना है 1, 1/1 × 3 3 एस 1 + 3, तो कितना आ जाएगा बोलो बेटा, 3/3 how much, 27s4। तो अगर देखो एस लेना पड़ेगा अलग से तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, ये 27 नीचे जाएगा, KSP/27 एंड विच रूट, फोर्थ रूट। आर यू गेटिंग इट? सपोज बेटा आई गिवन यू दिस सॉल्ट, कैल्शियम फॉस्फेट, क्या करेंगे बोल, कैल्शियम फॉस्फेट दिया है, एक्स का वैल्यू कितना है बोलो 3, तो क्या हो जाएगा 3/3, फिर 2/2, देन एस एक्स प्लस वाई, सो हाउ मच इट विल बी बेटा 3 + 2। हाँ चलो, तो ये कितना हो जाता है बोला 3/3, 27, 27 × 4, S5, 27 × 4 इज 108। समझ में आया क्या? ऐसे भर भर के क्वेश्चन आपको करने, हाँ बोलो। ऐसे सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मैंने बताया ना, सॉल्युबिलिटी मतलब सब तेरा बेटा कैपेसिटी है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, लेट अस से यू कैन ईट मैक्सिमम कितना चपाती खा सकता है, तो लेट अस से 5, तो दैट इज सल्यूट। अभी इमेजिन यू आर अ सॉल्वेंट एंड द चपाती विच यू आर ईटिंग इज अ सल्यूट, तो तेरा सॉल्युबिलिटी कितना हो गया, समझ में आ गया? वैसे अगर मैंने 1 लीटर पानी दिया या 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो मैक्सिमम सल्यूट विच वी कैन ऐड टू इट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी एट अ गिवन टेम्परेचर। Because if you change the temperature, water will expand and solubility will increase. And if you decrease the temperature, then what will happen? Solubility will decrease. Clear? तो अभी देखो इधर पे आ जाते, मैंने आपको जो हैंड रिटन नोट्स दिया उसमें मैंने क्या दिया आपको, मैं बता देता हूँ पहले। हाँ बोलो। नो नो नो, दैट इज नॉट द रीजन, दैट इज रिलेटेड टू हंगर। आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज फॉर सॉल्वेंट। होते मैं ऐसे ही तेरे को लेमेंस एग्जांपल दे रहा था। ये देख बेटा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। हेलो, ये दिख रहा है बेटा? अरे बोलो ना, ये शॉर्टकट खाली इतना याद रखोगे तो आप ये सब कर पाओगे बेटा। ये देख मैंने सबका अलग अलग एग्जांपल दिया है, ठीक है? ये देख कैल्शियम फॉस्फेट का भी है ना उसमें? क्लियर है ना? बराबर। ये कीगन, यू कम हियर, सिट इनसाइड, गो बैक बिहाइंड लास्ट बेंच। ओके, तो शोभिता है क्या? पीछे चला जा। नाउ बेटा वी आर गोइंग टू गो फॉर द, अच्छा इसके सम्स, ओ हो, वेरी इजी न्यूमेरिकल, कम ऑन, या वेरी इजी। कौन? वो आया ही नहीं है, मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया। अच्छा चलो बेटा, अभी आप ये ओरली बताओ इसको कैसा करोगे, अभी के अभी करो, चलो मेरे साथ प्लीज बेटा। हम लोग को कौन सा वैल्यू देखने का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चा गड़बड़ करेगा, मैं अभी भी बता रहा हूं, यू विल डू मिस्टेक इन दिस। चलो वेरी फर्स्ट वन, आजा। ए युवराज पहला वाला देखिए, इसका ढूंढ, KSP और KB क्या होगा, सब लोग सोचो, मन में सोचो सब लोग। चलो पहले मैं बता देता, सुन लो, एक हिंट दे देता। Ag का वैलेंसी 1+ होता है, और ये क्रोमेट है, क्रोमेट का 2- होता है, तो ये इधर गया, ये इधर गया, तो क्या मिला आपको, Ag2CrO4 मिला। लेट मी टेल यू, अभी अभी तुम लोग पहला मन में सोचो, करो क्या आता है KSP, और खाली रिलेशन बताओ। मर गए उमर? हाँ क्या करेगा जल्दी, तो क्या लिखा है करना आंसर यहाँ पे ओरली, अरे ले रहे हैं वो कौन सा लाया है? सही करना है, अरे उसको लाया है। मैं भी दे रहा हूँ, मेरा छोटा मोटा टेस्ट गया है, चले पहले में आप लोग ने, सब लोग ने ना रॉन्ग कर दिया, तुमको मैं बता देता हूँ, सुनो। ए ए अबे, ये देख, ये वैलेंसी इसका 2 इधर आया, ये 1 गया, तो ये तेरा जो वैल्यू है यहाँ पे आप लोग ने 4 लिया ना, रॉन्ग हो, ये 4 नहीं है बेटा, क्या है ये, 1 है। अब समझा? हाँ, तो KSP यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो बेटा, एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स इज हाउ मच बेटा 2, एंड वाई इज हाउ मच बेटा 1, इट इज नॉट 4, ये क्रोमेट का 4 है।
हो गया, निकल गई सारी हेगड़ी, ठीक है। हाँ, तो 2+1 यही इसके लिए मैंने पर्पसली ये करवाया, तो क्या आएगा 4s³। अभी इसका करो, देख ये बाहर ये नंबर जो रहता है फॉस्फेट का F4 नहीं लेते हम लोग, पता है ना बेटा, ये अभी हम लोग ने किया था यार। बोलो। 108s⁵ बराबर है। चलो ये वाला करो, क्या हो गया 27s⁵ हाँ s⁴, हाँ 4 बोला, बरोबर है बरोबर है, समझ में आया कि नहीं, इजी था कि नहीं बोल। तो फिर चलो अभी एक न्यूमेरिकल करते हैं आजा, काय करे थे इसको दे दे। चलो ए नाउ ये कम यार, व्हाट इज गिवन यार, हाँ इधर देख, ए ध्रुवीन इधर देख बे, क्या बोला है ढूंढने के लिए, क्या पढ़ना, क्या पहले यार ये पढ़ना, सॉलिडिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो व्हाट इज गिवन KSP 5.2 into 10 raised to, what you have to calculate, first in mole per and then in what ग्राम। तो अभी सॉल्ट कौन दिया है AgBr, तो Ag में x का, तो KSP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, ये यार ये x का वैल्यू भी 1 है, y का भी कितना है, तो 1:1 into 1:1 is equal to as 1+1, got it, so KSP is equal to what, s², therefore s is equal to what, रूट ऑफ KSP। अभी कभी भी बेटा रूट में अभी आपको नंबर क्या दिया यहाँ पे, KSP का वैल्यू 5.2 into 10⁻13 दिया ना, उसको इवन नंबर में लेके जाने का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 52 into 10⁻40। अब हम लोग इसका रूट निकालेंगे तो रूट ऑफ 52, और ये क्या हो जाएगा बाहर जाके 10⁻7। क्या हो गया शनाया बेटा, आया ना, अरे ये मैथ से बेटा, अरे ये 5.2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, 5.2 इज इक्वल टू 52 into 10⁻14, ठीक है। अब ये 52 का मस्त पे की रूट निकालो, कौन सा नंबर हम लोग ले सकते हैं, किसके टेबल में आता है ये, नहीं हाँ 7.2 तो मत समझ में आ गया, लेकिन ऐसा पहला बता ना 52 और कौन है भाई यहाँ पर, 7.5 अरे 52 का मल्टीपल तो बता, कोई 4 के टेबल में 52 आता है, 4 व्हाट्स आर 11 13 जार 13 जार, और कोई अच्छा नंबर है क्या 52 में जिसको हम लोग मल्टीपल कर सकते हैं, जिसका रूट आ सकता है डायरेक्ट, नहीं 2 तो हाँ 2 into 26 आएगा, वही पे वही आ जाएगा, 7 के टेबल में नहीं आता है ना, 6 के टेबल में भी नहीं आता है ना, नहीं नहीं फिर अपने को वही करना पड़ेगा, 4 इंटू क्या था बोल बेबी, हाँ क्या बे, तो रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ 30, ठीक है ना बेटा, तो ये तो 2 हो जाएगा, फिर रूट ऑफ 13 आप लोग ढूंढो बेटा, अरे लॉग टेबल से डायरेक्ट रूट 13 ढूंढ सकते हैं आप लोग, बराबर है, अगर नहीं भी आएगा तो ऐसा लिखने का log of 13 raised to ½ पता है कि नहीं, फिर क्या होगा एंटी log of 13 raised to ½ या डायरेक्ट एक रूट का कॉलम भी आ जाता है, समझा कि नहीं, तो एंटी log of ½ of log of 13, फिर दे हैव टू टेक एंटी लॉग, क्लियर है, ये तो ये सॉल्विटी मिल गया, ये सॉल्विटी तेरे को किसमें मिला बोलो, मोल पर लीटर, अपने को अभी बोला किसमें ढूंढने के लिए, दूसरा श्रुति बेटा दूसरा किसमें बोला है, तो ग्राम में, तो उसको क्या करेगा, मोलार मास दिया है ना बेटा, मल्टीप्लाई बाय मोलार मास, इजी, ये देख बेटा आपने किया था ना, बरोबर किया था, ये देख रहा है बेटा, ये देख क्लियर है, फिर देख अगर ग्राम में बोला है तो इसको मल्टीप्लाई बाय मोलार मास वाज गिवन इन द न्यूमेरिकल, इधर पे आ जाओ, अभी तुमको ना टेक्स्ट बैक के पीछे का मैं क्वेश्चन बता देता, इसमें अभी हम लोग ने आज क्या किया बोलो, सोल्युबिलिटी किया ना, हाँ तो अभी सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बरोबर है भाई,
इधर क्या सम पीछे दिया ही नहीं है, नहीं दिया है बेटा, लेकिन तुमको समझ में आ गया ना, मैंने वो सम तो तुमको बताया है। ठीक है, इसमें नहीं दिया बेटा एक भी। हाँ हाँ, ये राइट है, एमसीक्यू कर सकते हैं वॉरली, कम ऑन यू कैन डू इट। सॉल्व दिया है। ए भाई देखिए सिमिलर सम था बेटा, वही सम है बेटा, दिख रहा है कि नहीं? ये झिंगा लोग एंड झिंगीस, ये देखना बेटा, व्हाट इज गिवन, सॉलिडिटी प्रोडक्ट इज गिवन। सो एस एस वी हैव टू कैलकुलेट, ए एक्स है मतलब ये भी वन है, ये भी वन है। तो के एस पी कितना आता था तुम्हारा बेटा, एस स्क्वायर, देयरफॉर एस विल बी व्हाट, रूट ऑफ के एस पी। तो हाँ मतलब ये 5.2 इंटू मतलब 52 इंटू 10, हाँ सेम ही क्वेश्चन है, 10 टू, तो इसका 10 - -7 एक ही बंदा है, यही आंसर है, ठीक है ना बेटा? क्लियर है? Okay, now we are going to go for the next part, that is ionic product. क्या है? क्या नहीं, क्या हो गया ये आयनिक प्रोडक्ट करने का भी। ओके, ओके, अब बेटा सुनो, ए भाई, व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट? सुनो, आपको पता है हम लोग इक्विलिब्रियम भी पढ़ते थे, जैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अच्छा अभी बेटा मैंने क्या किया पता है क्या, AgCl को मैंने क्या किया, पानी में डाला, तो पहले वो डिसोसिएट होके क्या दे रहा है आपको, Ag+ दे रहा है और Cl। पहले मैंने जस्ट स्टार्ट किया इस पे, क्या वो अंदर अभी मतलब इक्विलिब्रियम आया क्या अभी तक? फिर क्या हुआ पता है क्या, 5 मिनट तक, 0 मिनट को मैंने स्टार्ट किया, एंड देन आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स में क्या हुआ, इक्विलिब्रियम आया, क्या आया, ओ हो, तो मतलब बिटवीन दिस टाइम टिल दिस फेज इक्विलिब्रियम था क्या, नहीं था, टिल दिस टाइम इक्विलिब्रियम वाज नॉट, बट आफ्टर 5 मिनट, 5th मिनट पे इक्विलिब्रियम आया कि नहीं, 5th मिनट पे आया कि नहीं आशिका, 5th मिनट पे आया कि नहीं? So whenever I multiply the product at 5th minute when equilibrium is there, then we call it as which product, solubility product। हम लोग इसको क्या कहते थे, solubility product is when it is in equilibrium। बट अगर जब इक्विलिब्रियम नहीं था, when equilibrium was not there, at that time if I multiply Ag+ and Cl minus, if at that time if I multiply whatever concentration of Ag+ and Cl minus they have given, so that product will be known as what, ionic product। So what is ionic product? It is nothing but the product of the concentration of ions at any point, at any point other than equilibrium, other than equilibrium। इक्विलिब्रियम पे आएगा तो वो कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, बोलो बेटा, solubility। Clear है? If you remember 9th, sorry 11th में we have studied, what we have studied बेटा, remember reaction quotient and equilibrium constant, QC and KC। QC and KC, तो KC क्या होता है, जब इक्वेशन इक्विलिब्रियम, डायरेक्ट इक्वेशन कभी भी इक्विलिब्रियम में आएगा, मैं सॉल्व टू, आपने मेरे को पानी में डाला तो तुरंत इक्विलिब्रियम होगा क्या, 5 मिनट के बाद इक्विलिब्रियम होगा। तो जब तक इक्विलिब्रियम नहीं होता है, एट दैट टाइम आप मेरे आयंस को मल्टीप्लाई करोगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलो बेटा, आयनिक प्रोडक्ट। जब मैं इक्विलिब्रियम पे आ जाऊंगा तब आप मेरे आयंस को मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्युबिलिटी। वैसे ही अगर आयंस नहीं होते, नॉर्मल रिएक्शन होता, तो रिएक्शन कोशेंट क्या होता था, क्यूसी। क्यूसी इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड एट एनी पॉइंट अदर देन, एट एनी पॉइंट अदर देन इक्विलिब्रियम। क्लियर है मानस बेटा, यहाँ पे ध्यान दे। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको एग्जाम में, आप बेटा कोई भी सॉल्ट लेते हैं पानी में डालता है तो कभी कभी पता है वो सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो जाता है, नीचे गिर जाता है, आर यू गेटिंग इट? फिर एक ऐसा टाइम होता है कि वो डिजोल्व होते रहता है, तो जस्ट वो तो कब आप बोलोगे कब तक वो डिजोल्व हो सकता है, कब प्रेसिपिटेट बनेगा, तो उसके लिए कितने कंडीशन है, 3 कंडीशंस वी आर गोइंग टू स्टडी। 3 कंडीशन, ठीक है, हमने कंडीशन 3 कंडीशन। पहला कंडीशन बेटा, अभी मैं तुमको ना कैसा ये बता देता हूँ कंडीशन, और ये आएगा एग्जाम में और मैं आपको बोलूंगा लिखने के लिए दिया, अभी मत लिखना कुछ भी बेटा। देयर आर 2 थिंग्स, आयनिक प्रोडक्ट इज व्हाट बेटा, अरे यहां तक अभी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा, आयनिक
आयनिक प्रोडक्ट का हम लोग शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे बेटा? आईपी. आईपी इज व्हाट? द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एट एनी पॉइंट अदर देन इक्विलिब्रियम. दिस इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, दिस इज. अच्छा, अभी मैं तुमको एकदम बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है? अभी हर एक सॉल्ट का केएसपी फिक्स होता है, तभी तो उसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं. कि अगर डाला है तो फिक्स है कि नहीं? केएसपी इज व्हाट बेटा? फिक्स. ये फिक्स चीज होती है. बट आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है बोलो बेटा? वेरिएबल होता है. क्या होता है वो? कम ज्यादा जैसा मैं करूंगा वैसा फिर बाद में सोल्यूशन में कंडीशन आएगा. ठीक है. अभी मैं तुमको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, ऐसे लेमेंस एग्जांपल. ए नया बेटा यहाँ पे ध्यान दे. लेमेंस केएसपी इज व्हाट बेटा? ऑटो रिक्शा देखा ना बेटा? ऑटो रिक्शा. ऑटो रिक्शा के पीछे कितने लोग बैठ सकते हैं एज पर आरटीओ रूल? 3 पीपल. और आयनिक प्रोडक्ट कौन है? पब्लिक जो ऑटो रिक्शा में बैठने वाली है. ठीक है ना बेटा? वरना ये बोले कि सर ऑटो रिक्शा में तो 8-10 जन बैठ सकते हैं. पता है ना बेटा? बहुत सारे विलेज साइड में जाएंगे तो है ना ऐसा, सब एक जन यहाँ बैठा है, एक जन यहाँ पे बैठा है, पता भी नहीं चलता कौन चला रहा है. एक जन ऐसा बैठा रहता है, हम लोग को लगता है हमारे बाजू वाला चला रहा है, वो उसका हाथ बाहर रहता है. एनीवेज, बट एनीवेज अब देखो बेटा, सुनो. ऑटो रिक्शा के पीछे कितना जगह है बेटा? 3. उसको हम लोग केएसपी कह रहे हैं फिलहाल. सुनो, इधर देख भाई हीरो. अगर अंदर एक जन बैठा, कितना पब्लिक बैठा बोलो? 1 person. If 1 person is going to sit here, ठीक है? And how much was the capacity? तो who is greater? Capacity is more ना बेटा? तो कुछ होगा क्या उसमें? नहीं, वो इंसान आराम से बैठ के जा सकता है. सपोज अंदर ऑटो रिक्शा में 2 लोग बैठे पीछे, कुछ होगा क्या? नहीं. अच्छा, ठीक है ना बेटा? तो बेटा व्हेन केएसपी इज ग्रेटर देन आईपी, तो व्हाट विल हैपन बेटा? सोल्यूशन कौन सा होगा तुम्हारा? फर्स्ट कंडीशन ये है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या रहेगा? अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड का मतलब क्या रहता है बेटा? मैं मोर सोल्यूट डाल सकता है. तो हम लोग बेटा पीछे 3 का कैपेसिटी था, तो हम लोग एक पब्लिक डालेगा तो कुछ होगा क्या? और भी 2 लोग आ सकते हैं कि नहीं? अच्छा बेटा, अभी पीछे बैठने का कैपेसिटी कितना लोगों का था? 3. और पब्लिक भी कितना आया? तो क्या हो जाएगा? अभी पीछे कुछ जगह बचा है क्या बैठने के लिए? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड. बरोबर है? क्या हो जाएगा? क्लियर है? इमेजिन आपका ऑटो रिक्शा दोनों साइड का वो, एक साइड वो सब दोनों साइड का गेट है ना, ओपन है. अब बेटा क्या हो जाएगा? 4 पब्लिक आएगा बैठने के लिए. हाउ मेनी पीपल आर कमिंग? 4 people. तो अंदर ऑलरेडी 3 लोग बैठे हैं, वो चौथा ऐसा बैठेगा तो वहां से एक जन नीचे गिर सकता है कि नहीं बोलो? ठीक है ना? वो कोई मूवी था, वो कौन था, हेरा फेरी, पता है ना? ऐसा एक जन बैठता है वहां से गिरते रहता है. हाँ. तो बेटा इफ आईपी विल बी मोर, इफ आईपी इज, तो क्या हो जाएगा? पीछे जो बैठा है उसमें से एक्सेस बाहर गिरेगा कि नहीं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन. क्या कहेंगे? तो when precipitation will take place when ionic product is more than solubility product. एग्जाम में 2 मार्क के लिए आता है बेटा. व्हाट आर द कंडीशन फॉर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन? ओके. तुम्हारा बेटा कैपेसिटी है लेटर से 5 चपाती खाने का, अपने घर 1 चपाती खाया, आपका कैपेसिटी फिक्स है वो 5 चपाती, मतलब वो क्या हो गया तुम्हारा बोलो बेटा? केएसपी. केएसपी. केएसपी ना तुम्हारा फिक्स है ना वो. आपने 1 चपाती खाया तो और अंदर चपाती जा सकता है ना? तो मतलब आप जो चपाती खा रहे हो तुम्हारा आईपी है. क्या है? आईपी. तो आपने अगर 2 चपाती खाए तो और लोग आ सकते हैं कि नहीं? तो आपका पेट भरा क्या? तो आपका अनसैचुरेटेड है. ठीक है. लेकिन आपने अगर 5 चपाती खा लिया, आपका कैपेसिटी भी कितना था? तो आप सैचुरेटेड हो गया. फिर जबरदस्ती किसने और आधा चपाती खिलाया तो क्या होगा? वो आप प्रेसिपिटेट कर दोगे. ठीक है. अच्छा, बट एग्जाम में इस पे भी न्यूमेरिकल कैसा आएगा? सुनो, आपको ना एग्जाम में दे विल गिव यू द वैल्यू ऑफ केएसपी. किसका वैल्यू दे देंगे? केएसपी. हाँ. और आपको दो आयंस, आयंस का हम लोग क्या ढूंढेंगे बेटा? आईपी. आईपी. तो आईपी हमको ढूंढना पड़ेगा. आईपी ढूंढना पड़ेगा. या कभी कभी वो लोग आईपी दे देंगे तो हम लोग केएसपी ढूंढेंगे. फिर दोनों को कंपेयर करने का. अगर आईपी ज्यादा आया तो क्या होगा? प्रेसिपिटेशन. अगर दोनों सेम आएगा तो क्या होगा? और अगर कम आया तो समझ में आया? तो चलो बेटा, ये ना, ये है ना, मैं क्या चाहता आप लोग है ना, प्लीज आप मेरे जो आपको नोट्स दिया ना उसमें खाली ये 3 पॉइंट लिख लो बेटा. हैंड रिटन नोट्स दिया ना उसमें, ये पारा 3.
ये टेक्स्ट बुक में भी है, ए बी सी, देख पीछे जगह आएगा पूरा पेज, जहाँ पे भी, वहां पे भी एडजस्ट कर देना बेटा ये। ए वाई पी इज इक्वल टू के एस पी, देन व्हाट? इक्विलिब्रियम। एंड इफ IP is more than and IP is less than unsaturated, ये तीन कंडीशन आएगा बेटा 2 मार्क के लिए, लिख लेना बेटा। या अरे यहाँ पे इसको ऐसा आते भी आड़ू करेंगे, लिख मस्त जगह है, ऐसा हॉरिजॉन्टली लिखते नहीं, इधर पे ना लास्ट पेज, लास्ट पेज, ये डब्बा है। तो और रफ पेज चाहिए तो बोला क्या इसको, अरे मैं उसको टेस्ट के लिए ये ले, देखो भी चाहिए क्या अंदर रहेगा। ये इधर पूरा इधर ऑलरेडी रिटन है। आया बेटा तेरे को, ये इजी है ना। हाँ वो पीएच वो टूल थे ही नहीं ना वो क्लास में, वो करा हुआ जो टेस्ट करना। क्या हो गया स्तुति बेटा? ए भाई तुम लोगों को पता है ना नेक्स्ट वीक में तुम्हारा हैलोजन डेरिवेटिव का टेस्ट है, थियरी, और 2 वीक पहले मैं बोल के रखा था हैलोजन डेरिवेटिव। हाँ याद नहीं तो मेरे को मालूम नहीं, करना पड़ेगा। हाँ सैटरडे को होगा, नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे विल बी थियरी टेस्ट एंड संडे विल बी एमसीक्यू टेस्ट। कोई नहीं है तो सीधा जा रहा है, वो तेरे को देना पड़ेगा भाई, सीटी तो तू दे ही गई ना, ऑनलाइन करना है सीट। सर या तो मेरे को क्वेश्चन पेपर दे दे। अरे क्या चलो ना जा लो बेटा, हैलोजन डेरिवेटिव में एवरीथिंग वी डिड इन द क्लास, मैंने सारे कन्वर्जन कैसे करने का एवरीथिंग वी हैव रिटन इन द क्लास ओनली, all text pack question answers we have done in the class. I gave you the trick, you know, whenever they ask you primary, then always you have to do anti-Markovnikov. Whenever they will ask secondary and tertiary, then भूल जाओगे तो ऐसा आएगा नहीं फिर स्कोर एग्जाम में, बार बार करना पड़ेगा, या फिर तुम लोग को बैठना पड़ेगा रोज क्लास के बाद, वन एंड हाफ आवर आई गिव यू असाइनमेंट एंड कीप ऑन डूइंग द असाइनमेंट, बस। हाँ हाँ करना पड़ेगा, वरना तुम लोग ऐसा पढ़ोगे नहीं। हाँ अभी तक क्या नहीं हुआ है। क्या हिट नहीं हुआ है? हैलोजन डेरिवेटिव तो पूरा हुआ था क्लास में। हाँ वो तो ऐसा बोलते रहे, साल खत्म हो गया तब भी तू बोलेगा कि मेरे को हिट नहीं हुआ, मेरे को ये नहीं हुआ है, ये वो प्रॉब्लम है, तो तेरे को रुकना पड़ेगा अभी, तेरे को हिट करवाता हूँ मैं बरोबर। I'll give you nice stuff, you'll get so high ना बेटा, I will hit you hard. Yeah? Manali cream hybrid also. हाँ तो होने ना तो, अरे अभी तो कुछ नहीं है। I have spent almost 9 years in Victoria का premises, 11 से मेरी बात MSc तक, 7 years वो हो गया, फिर 2 years NMIMS, 9 years। हाँ ब्रेकिंग गुड। चलो बेटा, हम जब थे तब बहुत होता था वहाँ पे ड्रग ये वो, अभी तो पता नहीं, को बहुत आजकल तो नया सप्लायर है ऐसा तरीके अरे हाँ तेरे को होलसेल में माल चलेगा तो आ जाना। होलसेल में माल लिखने I'll be very reasonable बेटा, I'll be very reasonable। चलो चलिए अच्छा जाएगा। हाँ लिखेगा सब। चलो चलो बेटा अभी बात आ जाओ, ओए पीछे वो सब लाइन सर गली में वही चलता था पहले हमारे टाइम पे, बहुत अभी भी चलता है। ओके ओके बस तेरे को बड़ा पता है हाँ? चलो बस, ओए 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 इनफ नाउ। चलो बेटा हो गया ना ये, देखो ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है आपके बोर्ड में भी, पेपर पास्ट ईयर पेपर में भी देखना बेटा, दिस इज योर एंड हैलोजन बेटा, आई हैव गिवन ईच ऑफ यू दैट, अरे कलरफुल नहीं रे बाबा, पास्ट ईयर का पेपर चैप्टर वाइज
और उसका मैंने सोल्यूशन भी भेजा है आप लोगों को। हैलोजन डेरिवेटिव का भी मैं भेज दूंगा, तो उसमें से पढ़ना स्टार्ट कर दो। चलो ये वाला सम करेंगे। स्वाति बेटा इधर पे आ जाओ, क्या दिया है देखो ना। मैंने आपको क्या बोला था, इसमें कैसा सम आएगा? व्हाट इज गिवन? स्वाति, केएसपी इज गिवन और नॉट? अभी देखना इधर फोन में क्या दिख रहा है इधर। देयर केएसपी इज गिवन और नॉट, टेल मी। या अब क्या किया आपने, बोलो। 0.1 मोलार मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये बेटा सोडियम क्या दिया है? ये कोई एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड का है वो, सोडियम ऑक्जेलेट है। क्या है? तभी बेटा इन दोनों को मैंने मिक्स किया। क्या किया? इन दोनों को इक्वल वॉल्यूम लिया है। कितना लिया है? अब वो लोग ने क्या बोला है कि ये दोनों रिएक्ट, अच्छा तुमने देखो बेटा ये रिएक्शन मैंने ऐसे लिख के बता रहा आपको। यहाँ पे MgCl2 और क्या दिया है बोल बेबी? सोडियम ऑक्सलेट। अच्छा तुमको पता है कि ये दोनों रिएक्ट होके क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्सलेट बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्सलेट। अच्छा मैं तुमको ये भी बता देता हूँ, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है? 2+। ऑक्सलेट का वैलेंसी भी कितना है? 2-। ये बेबी यहाँ जो राशि का, ये देख, तो 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। तब ये समझा? तभी आपको क्या करने का है, वो लोग ने बोला कि ये जो बनेगा वो उसका प्रेसिपिटेट बनेगा या वो सोल्यूशन में डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा। ठीक है ना? तो क्या बोला है? वुड MgC2 विल प्रेसिपिटेट आउट। तो अभी अपने को क्या ढूंढने का है? उसका आयोनिक प्रोडक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? आयोनिक प्रोडक्ट। मतलब क्या ढूंढना है मुझे? Mg2+ इंटू ऑक्सलेट। इन दोनों का मैं क्या करूंगा? वैल्यू ढूंढूंगा। वो वैल्यू को मैं किससे कंपेयर करूंगा? स्वाति बेटा टेल मी, किसके साथ कंपेयर करूंगा? केएसपी। ये मेरे को आईपी मिलेगा कि नहीं? अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा बोलो बेटा? प्रेसिपिटेशन। लेकिन अगर कम होगा तो नो प्रेसिपिटेशन। क्लियर है? तो मुझे अभी क्या करना है? सबसे पहले किस किस का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना है बोलो? अरे अभी बताया ना मुझे, सबसे पहले किसका ढूंढने का है? Mg2+ का ढूंढना है। और किसका ढूंढना है? ऑक्सलेट का। क्लियर है? बोलो ना। तो ये दोनों का मुझे क्या ढूंढने का? आयनिक प्रोडक्ट। तो अभी बेटा अब हम लोग ने इसको देख 0.1 मोलार मैग्नीशियम को किसके साथ कंबाइन किया है? 0.3 मोलार ऑक्सलेट के साथ। अच्छा दोनों को मिक्स कर दूंगा, दोनों का वॉल्यूम क्या बोला है? इक्वल ना? व्हाट इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बेटा? कोई भी चीज का अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना है, मैंने ना दो सोल्यूशन दिया है, ठीक है ना? ये ए है, ये बी है। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया है। क्या कर दिया है? तो इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा बोलो बेटा? इसका कॉन्सेंट्रेशन था C1 और इसका वॉल्यूम था V1। इसका कितना था बोलो बेटा? C2। और इसका वॉल्यूम कितना था? तो व्हाट विल बी माय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर बोलो बेटा? C1 + C2। बराबर है कि नहीं? और अपन वॉल मिक्स कर दूंगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V1 प्लस, मतलब मिक्स करने पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा कि नहीं? या तो मैं इंडिविजुअली भी ढूंढ सकता हूँ। अच्छा ये लोग ने वॉल्यूम क्या बोला है? इक्वल है। इक्वल वॉल्यूम बोला है कि नहीं? तो इक्वल वॉल्यूम बोला मतलब मेरा भी 1 लीटर था, इसका भी कितना है? 1 लीटर। मेरा 1 लीटर में कॉन्सेंट्रेशन था 1 मोला। अब हम लोग दोनों को मिक्स करेंगे तो मेरा फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2। तो 1 मोलार/2, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? हाफ। इसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? तो इसका 4 मोलार था, तो फाइनल वॉल्यूम हमारा कितना हो गया? 2। तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? हाफ। क्लियर है? तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+? कितना दिया था Mg का? 0. लेकिन आप बोलोगे सर ये 2 से क्यों डिवाइड किया? अबे वॉल्यूम क्या था? इक्वल है कि नहीं? तो ओरिजिनल कितना था उसका? 0.5 था, वो 1 लीटर में था। लेकिन अभी वॉल्यूम दो जन को मिक्स करेगा तो डाइल्यूट होगा कि नहीं मैं? अच्छा ऑक्सीलेट का कितना होगा? 0.3। 0.3 था ना? उसको भी क्या करेंगे बेटा? डिवाइड बाय 2 करेंगे कि नहीं? हाँ तो देखने लिखा है ना, when the solution is prepared mixing equal volume, the volume get double, so effective concentration of ions would become half. चलो हाफ हो गया। अब बेटा ये भाई देख, दोनों का मिल गया आंसर यहां तक। Mg का मिल गया और किसका मिल गया? ऑक्सलेट का मिल गया। अभी मैं उसका क्या ढूंढूंगा? Ip। अबे Mg इंटू दिस, इन लोग के आगे बैलेंसिंग के लिए कोई नंबर है क्या? तो रेस टू द पावर आएगा क्या?
तो इन दोनों का वैल्यू मेरे को पता है, mg2 प्लस का कितना आया 0.5 आया, इसका कितना आया 1.5, दिख रहा है कि नहीं? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 0.15 था क्या 0.05 था, एक मिनट देखने दे वहां पे कितना था, नहीं नहीं यहाँ 0.1 था तो 0.05 बराबर ना। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया, हाँ जो भी मल्टी, हाँ तो इसको 7.5 इंटू 10⁻³ KSP का वैल्यू कितना था बोलो। अच्छा अभी मेरे को पता इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, याद रखना नेगेटिव है, ये नेगेटिव पावर जितना रहता है ना, तो जितना कम नेगेटिव पावर रहता है दैट इज अ बिगर नंबर। तो हु इज द बिगर नंबर, या योर IP is more, therefore precipitation will take place, therefore precipitation will take, क्लियर है, समझा क्या? ये मैंने बता दिया आप लोगों को। चलो बेटा अभी ये वाला, और तुम पहले मन में ओरली बताओ मुझे, चल इसमें वो लोग ने दे दिया बेटा, ये भी कितना था बोल बेटा, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे बेटा। अबे यार ये देख नहीं कितना है 20 cm3, और ये भी कितना है बोलो बेटा 20 तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अभी हम लोग ढूंढेंगे कि नहीं बोलो। अभी वही दिया ना, KSP दे दिया, बेरियम और फ्लोराइड, ये याद रखना, लेकिन यहाँ पे बेरियम और फ्लोराइड दिया ना बेटा, तो बेरियम का एक ही आयन होता है, फ्लोराइड का कितना आयन होगा 2, क्लियर है? तो इसका आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, बेरियम इंटू फ्लोराइड, लेकिन फ्लोराइड रेस टू क्या आएगा, तो अभी मुझे सबसे पहले किसका आंसर ढूंढना है, बेरियम का ढूंढने का, और किसका ढूंढने का है फ्लोराइड। बेरियम का कितना दिया था बोलो बेटा 0.05, और इसका कितना दिया था 0.02, लेकिन बेटा दोनों को मिक्स किया तो दोनों डिवाइड कितने से हो जाएंगे 20 + 20 तो कितना हो जाएगा 40। तो ये आप देख रहे हैं बेटा, ये देख इसको मैंने किससे देख, कॉन्सेंट्रेशन कितना था तुम्हारा बोलो बेटा, इसको डिवाइड बाय 40 क्यों किया वो समझा क्या? और इसमें पूरा नहीं लिया था, इसमें से भी मैंने कितना लिया था, सिर्फ 20 cm³ लिया था, कितना लिया था, तो व्हाट विल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम, ये बेरियम नाइट्रेट पूरा नहीं लिखने का था, खाली क्या लिखने का था बेरियम, यहाँ पे आप क्या लिखते थे सिर्फ फ्लोराइड। तो इसका कितना है बोलो 0.05 इंटू 20 होल थिंग अपॉन, इसका क्या करोगे बोलो बेटा 20 इंटू अपॉन 40, ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। अभी आपका आयनिक प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे बोलो बेटा, व्हाट इज द आयनिक प्रोडक्ट में किसका ढूंढने का आपको, BF2, तो बेरियम कितना है 1 है, फ्लोराइड का आंसर क्या आएगा, हाँ तो बेरियम की जगह पे आप क्या डालोगे ये वैल्यू, फ्लोराइड की जगह पे, ठीक है, सो व्हाट विल गेट, ये देखिए रेस टू 2 आया कि नहीं, आंसर कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻6, KSP इज हाउ मच बेटा इंटू 10⁻⁻6। अच्छा दोनों का -6 -6 सेम है, तो हम लोग अभी कौन सा वैल्यू देखेंगे, हाँ तो कौन सा वैल्यू बड़ा है 2.5, therefore precipitation will occur, क्लियर है? अरे बोलो रे बाबा, बेटा ना ये जो ये धतिंग किया ना, आप ये धतिंग नहीं करते तो भी चलता था बेटा, ये पागलगिरी किया है लोगों ने। सुनो बेटा मेरे को बताओ ये कितना था 0.05, ये कितना था 0, अच्छा दोनों का वॉल्यूम 20 मतलब इक्वल वॉल्यूम ही है ना, तो डायरेक्टली इतना मगजमारी ये सब मल्टीप्लाई क्यों करने का, ये इसका कितना हो जाएगा हाफ 0.025, और ये भी कितना हो जाएगा इसका, ये इतना सब पागलगिरी करने की जरूरत नहीं था, ठीक है ना? तो देख बेटा ये देख अपना आंसर अभी आ गया कि नहीं यहाँ पर, क्लियर, ओके। चलो ये कॉमन आयन इफेक्ट वी हैव ऑलरेडी डन इन लास्ट क्लास, मालूम है कि नहीं कॉमन आयन इफेक्ट किया था कि नहीं, ओके। अब बेटा इधर पे आ जाओ, ये वाला पहले सम का ही आंसर मेरे को बताओ, पहले सम का आंसर बताने के लिए आई विल टेक यू फर्स्ट, पीएच स्केल पढ़ा है ना अपन ने, पीएच स्केल में क्या पढ़ा था बोलो, हाँ पीएच वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, 0 से 7 तक क्या होता है एसिड, तो यहाँ पे क्या होता है बेस, और एग्जैक्ट 7 होगा वो, ठीक है, और ये तुम्हारा पीएच स्केल है,
क्या है पीएच? चलो पहले का आंसर क्या होगा बताओ। शॉर्टकट टेक्निक किया था ना। 10⁻⁸ x, then pH is x. So what should be the answer? Yes, na? हाँ, ये 8 होना चाहिए था। अच्छा, लेकिन उन्होंने क्या दिया? HCl. HCl is what? HCl is what? एसिड। एसिड का पीएच कभी भी बेटा 7 से बड़ा हो सकता है क्या? अच्छी गलती। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा फिर? आंसर विल बी, ये बहुत ये एमसीक्यू आया हुआ है बेटा। हाँ, थोड़ा इसमें सोचना पड़ता है। कभी भी अगर एसिड दिया रहेगा ना बेटा, pH will be always less than 7। इसमें ही बच्चा, पहले भी आप लोगों ने मिस्टेक कर दिया कि नहीं बोलो? तो कभी भी पीएच पूछा रहता है तो देखने का एसिड दिया या बेस दिया। अगर एसिड दिया रहेगा तो कभी भी उसका 7 के ऊपर हो सकता नहीं। इसका आंसर क्या होगा बोलो बेटा? समझा ना? चलो बेटा, अभी इधर पे आ जाते हैं। अभी मेरा पेन का रख ठीक है। हाँ, सॉरी। खेमो खेमो फ्लो जो है तो उसका खीमो। अबे ये वाला करो। ये हम लोग कर दिया। ये हम लोग ने कर दिया। ये वाला आंसर सोचो। कॉन्जुगेट बेस बनाने का, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो कैसे बनाएंगे मानस बेटा? बताओ ना, थोड़ा सोचो ना। ये बेस मना मतलब ये तेरे को पता है बेटा, कोई भी एसिड रहेगा उसमें से तेरे को क्या गायब करना पड़ेगा? अबे झिंगे, H-। एक H+ गायब करता है तो तेरे को क्या मिलता है? कॉन्जुगेट बेस। वी हैव टू रिमूव वन प्रोटॉन, विच थियरी? लॉरी ब्रॉन्स्टेड, याद आ रहा है कि नहीं? तभी इसमें से अब ये अपने को क्या दिया है? ZnH2O4 दिया है। तो इसमें से अपने को क्या गायब करने का है? 1+ गायब करने का। तो क्या मिलेगा थोड़ा सोचो, क्या मिलेगा? या थिंक में वेरी गुड। कौन बोला? अच्छा सुनो बेटा, एक H+ गायब करना है ना बेटा, तो हमने वाटर भी हैड 4 वाटर था कि नहीं? अच्छा, आपको पता है बेटा एक वाटर रहता है तो एक वाटर में से अगर मैं एक H+ निकाल देता हूं तो मेरे पास क्या बचता है? OH-। तो बेटा ये 4 पानी था, 4 पानी में से एक पानी में से निकालूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा कि नहीं बोलो बेटा? ओके, और 3, और ये इसमें से एक H गया तो क्या बचा बोलो बेटा? OH बचा कि नहीं? तो एक OH मैंने लिख दिया बेटा। क्लियर है कि नहीं बोलो? अच्छा, OH आता है तो OH- एक H+ चला गया तो एक पॉजिटिव चार्ज चला गया कि नहीं? तो इस पे 2 पॉजिटिव, तो अब कितना पॉजिटिव बचेगा सिर्फ? तो आंसर इज व्हाट? सी। क्लियर है? ये भी आया हुआ है एक बार बोर्ड में। ठीक है। हम्म। ये pH 7 है तो pH इज ग्रेटर देन 7। pH इज, तो pH अगर ग्रेटर देन 7 है तो आप मेरे को बताओ, इट्स अ बेस। तो बेस का कभी भी बेस है तो उसमें H+ आयन क्या होता है? कम। और OH आयन क्या होता है? ज्यादा। अच्छा, तो अगर वो बेस है तो उसका रेंज किस में आना चाहिए? बिटवीन 10⁻⁷ के नीचे आना चाहिए या 10⁻⁷ के ऊपर? ऊपर। तो -7 के ऊपर कौन सा होगा? सी। या अभी 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 आप लोग क्या करोगे? घर पे कोई चीज देगा राप्टा एक सीधा, दिमाग खराब मत करो। उन्होंने बफर का किया था, ये हो गया था बफर, ये सब सप्रेशन वगैरह ये सब भी बता दिया था। ओके, Arrhenius theory, ये लास्ट टाइम वी डिड दिस टाइप ऑफ बफर आई हैव एक्सप्लेन। चलो बेटा, ये आंसर सोचो तुम लोग।
थिंक अबाउट दिस आंसर। एक्वेस सोल्यूशन ऑफ क्या बोला है? सोडियम कार्बोनेट। दूसरी बाजू में क्या बोला है? अमोनियम क्लोराइड। दोनों को पानी में एक्वेस बोला, मतलब दोनों को पानी में डाला। दोनों को किस में डाला? अब आप मेरे को पहला बताओ, राइट हैंड साइड में क्या मतलब है? बोलो। हाइड्रोलिसिस है, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। लीना के आरबीसी और सोनू क्लास बिरयानी। हाँ हाँ हाँ, फिर अरे ओरली बता सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट में बेटा लीना के आरबीसी दिख रहा है। लीना लाना मतलब इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। उसमें सोनू क्लास बिरयानी है क्या? अरे इधर इधर सोडियम कार्बोनेट की बात चल रहा है। तो मतलब वो क्या है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा? बेस है। वो वाले में देखो एसिड है। हाँ, उसमें क्या लीना के आरबीसीज है? तो कौन है? सोनू क्लास बिरयानी है ना। तो मतलब इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो फाइनल सोल्यूशन विल बी एसिड। लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते, आपको डिसोसिएशन बताना पड़ेगा एग्जाम में। तो क्या करोगे? तुमको बताया था, सॉल्ट होगा तो पूरा ब्रेक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरा ब्रेक होगा, वीक चीज ब्रेक होगा नहीं। अगर फाइनल सोल्यूशन में आपको राइट हैंड साइड में H प्लस दिखेगा तो एसिड है, और OH दिखेगा तो ठंडा होगा। चलो, अबे यार इसको पानी में डालेगा तो क्या मिलेगा? बोलो ना। एन कार्बोनिक एसिड। इसको पानी में डालेगा तो क्या मिलेगा? प्लस। तो बेटा ये देखिए, सोडियम कार्बोनेट पूरा ब्रेक होगा, क्या देगा तेरे को? Na प्लस एन कार्बोनेट। वाटर वाटर ही रहने वाला है। NOH स्ट्रॉन्ग है तो पूरा ब्रेक होगा, बराबर है कि नहीं? कार्बोनिक एसिड ब्रेक होगा क्या? इल है, तो तेरा यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा? Na कैंसिल। तो फाइनल सोल्यूशन में क्या बचा? तो बेसिक है, समझा कि नहीं? यहाँ पे क्या ब्रेक होगा? सिर्फ तेरा स्ट्रॉन्ग वाला ब्रेक होगा। और यहाँ पे तेरा क्या ब्रेक होगा? ये सॉल्ट ब्रेक होगा। सॉल्ट ब्रेक होगा तो व्हाट विल गेट? Cl कैंसिल। फाइनल सोल्यूशन में क्या बचेगा? तो फाइनल सोल्यूशन इज व्हाट? एसिड। इजी। अरे बोलो ना। चलो बेटा, अभी ये वाले सम तुम लोग दोनों करो। ये और ये करो तो और क्या बेटा, ये करोगे नहीं मैंने तुम अच्छा बेटा, तुम लोग को ये पूरा देखो, ये चैप्टर में से बेटा एक तो ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन का इक्वेशन आएगा बेटा, फॉर वीक एसिड और फॉर वीक बेस। पता है ना बेटा, वो हम लोग इक्वेशन ढूंढने गए थे के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी और के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, या फिर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और रूट ऑफ वॉल्यूम। फिर बफर का बेटा आएगा ही, टाइप्स ऑफ बफर, बफर मैकेनिज्म। फिर ये ऐसे सॉल्ट के क्वेश्चन आएंगे, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन विल बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। क्लियर है? फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन pH प्लस pOH इज इक्वल टू हाउ मच? 40। देन KSP और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स। बेटा बहुत इजी चैप्टर है, दिस इज द वेरी इजीएस्ट टॉपिक बेटा एकदम। हेलो, दिस इज द वेरी इजी टॉपिक। चलो अभी pH और pOH का सम करो बेटा फटाफट। क्या है, क्यों नहीं आ रहा है तुम लोग को ये? बेटा तुम लोग अगर घर पे जाके ऐसी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा बेटा। क्या दिया पहले वाला पढ़ो? कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला है। pH ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड दिया है, pH दिया है 3.2 और कॉन्सेंट्रेशन भी कितना दिया है? 0.0। हाँ वो सब भूल गए अभी ना। मैं समझ गया तुम लोग को है ना, ऐसा तुम लोग टाइम पास करने वाला, मैं तुमको भी पूरा क्लास में लिखवाऊंगा बेटा। अगर ऐसा करोगे तो मैं फिर ऐसा नहीं कराऊंगा, वरना कुछ करोगे नहीं तुम लोग। अबे येड़े, बोल क्या दिया है? 3.2। हाँ, pH कितना दिया है? pH अगर बेटा फ्रैक्शन में होगा तो तू ऐसा लिख सकता है क्या? H प्लस इज इक्वल टू 10⁻³ 3.2? नो। क्या करते थे जब ऐसा रहता तो तेरे को H प्लस इज हाउ मच बेटा? भूल गए क्या?
एंटी लॉग और पॉइंट के आगे जो भी नंबर है उसमें एक नंबर बढ़ाने का बार 3, और ये सिंगल डिजिट है तो उसको 10 में से माइनस करने का। भूल गए क्या? तो एंटी लॉग ऑफ व्हाट बेटा, ये 0.3 होता था तो बेटा 0.8 इंटू क्या लिखते थे डायरेक्टली 10⁻⁻3। 0.8 अभी एंटी लॉग ढूंढने का है। 0.8 का एंटी लॉग अगर, हाँ एंटी लॉग, हाँ हाँ बोल बोल क्या है कितना? 1,2,1,2,0,2 ना। वेरी गुड। अभी बेटा एंटी लॉग लिखते हैं तो आगे पॉइंट डालते हैं। मिल गया अपने को, H प्लस मिल गया क्या? 0.2 इसने बोला, अरे 1202, हाँ तो ये ले भाई बस खुश। इतना वो पैसे भी पॉइंट के बाद वाला नंबर कोई मायने नहीं रखने वाला। अभी क्या ढूंढने का तेरे को? कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? तो इसको 2 × 10⁻² लिख सकता हो कि नहीं? आपको क्या ढूंढने का? डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए। ठीक है बेटा, के ढूंढने का अपने को। के का फॉर्मूला क्या बोलो? 0.02 दिया है अपने को, के ढूंढने का है वीक मोनोबेसिक एसिड का। तो अपने को H प्लस मिल गया है और अल्फा ये सी मिल गया। तो अभी H प्लस और ये मिल गया तो हम लोग क्या ढूंढेंगे बोलो बेटा? के का फॉर्मूला क्या था? अल्फा स्क्वायर सी। तो अपने को अल्फा ढूंढने का है कि नहीं बोलो? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ H प्लस? H plus is alpha C. Therefore, alpha will be what? H plus by C. H plus मिल गया, C मिल गया, और ये वाला वैल्यू पूरा यहाँ पे डाल दे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो फिर, अरे समझा कि नहीं? अरे ये मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी तुम्हारे लिए सब। या क्या, ये देखो बेटा। अच्छा मैं, ये देखो ये न्यूमेरिकल्स थे, देखो इधर पे, ये देख कौन सा सम था, ये वाला ये था। श्श, नंबर क्या था बे, बोल बेबी। ये देख ये वाला सम था। इधर गया रे, ये देख, ये देख यही था ना 11.2? नहीं, कहाँ मर गया भाई सम? हाँ ये रहा, ये वाला था। दिखा के नहीं? अरे यार ये देखना बेटा, देख के आया कि नहीं बेटा अपने को? ये कहा था बेटा पीएच और मोनोबेसिक एसिड, देख पीएच दिया था। तो अब इन लोगों ने डायरेक्ट वो देखे 3.2 को हम लोग ऐसा लिखते थे कि नहीं? देखना बार 4.8 बराबर है कि नहीं? तो इसका एंटी लॉग अपने किया कितना है अपने को? तुम लोग ने रॉन्ग बताया बेटा। कितना बोला था तेने? आंसर रॉन्ग बताया था बेटा। 0.8 का एंटी लॉग कितना है? एंटी लॉग ही देख रहे हैं ना? तो बार अच्छा ये लोग ने 3.2 था कि 2.2 था? ओहो तो कोई बात नहीं, 3.2 का था तो मैंने बोला ना एक बार बढ़ाने का, तो बार 4 पॉइंट होगा ना बेटा। तो 4.8, तो इसका कितना आ रहा था तेरे को? 0.8 है तो 0.08 का देख रही है बेबी। 0.8 मतलब क्या होता है? इधर पे आता है ना, ये देख 631। हाँ रॉन्ग देखता है एंटी लॉग तुम लोग। अरे एंटी लॉग में क्या दिया था अपने को? क्या आया था? बार 4.8 था ना। तो चलो बेटा, तो एंटी लॉग निकालते थे, पॉइंट के आगे वाला नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो व्हाट यू हैव? 0.8 इंटू 10⁻⁻4। 0.8 में देखना तुम लोग 0.08 देखा था। 63 कितना था? 10। तो इसके आगे पॉइंट आएगा तो देख बराबर आंसर आया कि नहीं? H प्लस आ गया। अपने अपने और C दिया है तो H प्लस और C आ गया। तो आप लोग क्या करोगे? ये देखना अल्फा C। अरे you got this and you have C. So what is your H plus alpha? Alpha will be what? H plus by C. तो you will put H plus here, C is given here, तो आपको अल्फा मिल जाएगा। अल्फा से बाद में आप ये अल्फा यहाँ पे डाल देना। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, ओके बेटा। आई एम गोइंग टू गिव यू बेटा बोर्ड पेपर। इसके पास्ट बोर्ड पेपर्स में जो भी आया है वो मैंने दिया हुआ आपको, इसका पूरा शीट। अभी आपको क्या करना है, जो भी सुन लो बेटा। मैं भी है ना, तुम्हारा जो पास्ट बोर्ड पेपर है ना वो तुमको क्लास में सॉल्व करके मेरे को लाके दिखाना है। अभी भी बता देता हूँ। सोल्यूशन का, फिर किसका, हैलोजन डेरिवेटिव का, सॉलिड स्टेट का, और आज किसका करवाया? आयनिक। ओके, आईडी के क्लियर के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं? ठीक है, पास्ट बोर्ड पेपर। हाँ कम है, आईनिक का कम होगा बिकॉज दैट चैप्टर वाज इंट्रोड्यूस लेटर ऑन। ओके 2020 में वो इसको इंट्रोड्यूस किया था 20।
तो उसका आप लोगों को करना है। तो बेटा वी हैव कंप्लीटेड हाउ मेनी चैप्टर? सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, हैलोजन डेरिवेटिव एंड आयनिक डिफ्यूजन। पीडीवाई में भी कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है? ionic equation. हैलोजन डेरिवेटिव हो गया, आयनिक हो गया, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट। तो ये वो तो solid state तो है ही नहीं. है वो सिलेबस में है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर। ए सुन लो, जो सीईटी वाले बच्चे भी है, मिट्टी बाय वाले लिसन, मिट्टी बाय वाले बच्चे जो भी सीईटी करने वाले दे विल वेट आफ्टर द क्लास। अभी नहीं, मतलब फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑन। नॉन मिट्टी बाय वाले जो है वो लोग को मैं क्लास के पहले बुलाऊंगा, ठीक है। सो आई विल डू द प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस, एंड आई यू हैव टू ब्रिंग दैट सीईटी बुकलेट, ठीक है। Yes, sir. Yes. चलो देन बाय बाय। शनाया यू वेट, हाँ बेटा। और कौन है बेटा?